तो ठीक है उसके सर। आगे की क्लास भी उसी टाइम पे मिलेगी आप लोगों को। चलो। ठीक है तो सर, ओके, थैंक यू सर। लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द हाई अवेलेबिलिटी टॉपिक। एच ए डिस्कस किया था हमने। इन द हाई अवेलेबिलिटी वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्लस्टर्स। सबसे पहले हमने ये टर्म डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट रिडंडेंसी। अगेन माय स्पेलिंग इज वेरी बैड। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एएस, एजे। देन वी टॉक्ड ठीक अबाउट है सर। ASR, एज्योर साइट रिकवरी। VMSS अभी मैंने बताया नहीं है, इट वाज थियोरेटिकल इटसेल्फ। So these topics we have discussed so far, and these all are the part of high availability. So just an overview. High availability means in the production environment, our critical server should be always up and running. That concept is called high availability. How will you make your servers redundant so that they will be up all the time? It should not impact the production. That concept is called high availability. And in order to achieve the high availability in the company, there is a cluster of servers. If the service is very critical in the server, then company will definitely set up the clusters. In the clusters, there will be multiple servers. They will be running the same application. They will be running the same service. And in case the one server goes down, another server will take the load. So load will be transferred to another server. So this way we would be able to maintain the uptime, and that concept is called high availability. When the server is transferring the traffic to another member servers, because one server is down, that concept is called redundancy. It means if we have the cluster of 5 servers, and if one server goes down because of any technical issue, so the load which was there on this server, if it will be transferred to another member servers automatically, that concept is called redundancy. You can say my cluster is redundant, my server is redundant. Another concept is availability sets. It is the part of Azure. So in the Azure, when we are deploying the servers, we never know if they are the part of same rack, if they are the part of same physical server. That is why there is a concept called availability set in Azure. So availability set is the combination of FD plus UD. It is the combination of fault domain plus update domain. And it ensures that whenever you are deploying the VMs as part of a cluster, so it will never deploy your VMs in the same rack. If you are using the fault domain concept, so your VMs will be the part of different rack. Let's suppose you have chosen 2 FD. It means there will be 2 different racks. And if you are deploying, let's say 3 servers, so one server will be here, another server will be here, and the third server can be here. So servers will be divided into 2 different racks. That is the concept of FD. So by chance, if one rack goes down completely, let's say this rack is down, at least my 2 servers will be available and they will handle the load. If one physical server goes down where this VM was deployed, still I have 2 servers running. So at the time of rack failure, at the time of physical server failure, high availability ensures that my server should not go down. At least other servers should be working. It should not impact my production. Another concept is UD. So UD makes sure that whenever the Microsoft is doing any update, any patching, any maintenance, that time they don't restart all the servers at the same time. So UD will provide the numbering to the member servers, let's say 0, 1, and 2. And now the Microsoft will ensure that whatever servers have got number 0, they should be restarted first. Once they are online, then another member servers will be restarted. That is the concept of update domain. So together, FD and UD forms the availability set. So availability sets protect my virtual machine from any kind of outage and from any kind of plant maintenance in a single data center, in a single physical environment. But if that physical data center goes down, मान लो पूरा पूरा physical data center ही down होता है, let's say I have all this setup in the UK South data center, one of the UK South data center, and there is a fire situation in the complete data center. It has goes down. ये पूरा पूरा down हो गया because of any fire situation. So AS concept is not going to work because complete rack will be destroyed. पूरा rack ही जल जाएगा, servers वहां पे जल जाएंगे. So this concept is not going to work. For example, so in this scenario, if my servers are super critical, मेरे server अगर बहुत ही ज्यादा critical है, I cannot tolerate a single data center level failure.
मैं डेटा सेंटर की फेलियर को भी नहीं झेल पाऊंगा. Then I can go with the advanced concept, which is called AJ, availability zone. So availability zone is going to deploy my virtual machines into same region. Region same रहेगा, but in every region, mostly in 90% region of the Microsoft, they have three physical data center, and these physical data centers are around 190 kilometer away from each other. मतलब 190 किलोमीटर के रेडियस में पहला डेटा सेंटर, दूसरा डेटा सेंटर, तीसरा डेटा सेंटर, and they all will be in the same region. Let's say in India we have three physical data center, in UK South we have three physical data center, in UK West we have three physical data center. So in 90% regions, Microsoft have three physical data center in a single region. So they are the number one when it comes to the data center. सबसे ज्यादा डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट के है पूरे वर्ल्ड में इस टाइम, एज्योर क्लाउड के. दे आर द नंबर वन क्लाउड प्रोवाइडर इट व्हेन इट कम्स टू द डेटा सेंटर. AWS के पास 55 लोकेशन में है, एंड एज्योर है 135 प्लस लोकेशंस when it comes to the data center. So availability zone ensures that it will deploy your virtual machines into three different physical data center. तीन अलग अलग physical data center में आपके VMs को deploy करेगा. If one data center goes down because of any issue, another two data center is active, so your servers will be available. It will not impact your production. That is availability zone. So it is the advanced concept, then the AS. AS protects your virtual machine from the rack level failure, and availability zone protects your virtual machine from the data center level failure. That is the difference. But if the entire, let's say, the region goes down, अगर पूरा पूरा region ही down हो गया, let's say complete UK South is down. For example, there is a war situation. War situation चल रही है, मान लो country war situation. Country में wars होते रहते हैं. So let's suppose there is a war situation, and because of that the complete UK South is impacted. पूरा पूरा UK South impact हो गया. So if the complete region is impacted, all these three data center will also get impacted. ये तीनों data center भी impacted होंगे. So in this situation, we need another solution. If my server is super critical, let's say, let's talk about the Paytm. मान लो Paytm का server है ये, and Paytm is used in every 1 second. हर एक सेकंड में कोई ना कोई पूरे वर्ल्ड में Paytm को यूज कर ही रहा होता है. So let's suppose this is a Paytm server. It is super critical. Even I cannot afford the regional outage. Region down हो जाए मैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, because if the region is down, let's say for 30 minutes, मान लो 30 minutes के लिए पूरा UK South down हो गया, my three data center locations have been collapsed, मेरा Paytm stuck हो गया, तो फिर क्या होगा? My business will be impacted, and I have a lot of competitors also. We have Google Pay as a competitor, we have Phone Pay as a competitor, we have Bharat Pay, बहुत सारे competitors है. So my reputation will be at stake. पैसा तो चलो कोई बात नहीं, एक आधे घंटे का पैसा lost होगा, that is fine, company can handle it, but reputation loss is a big thing. If this will happen again and again, people will switch to another option. They have competitions, they can go to Google Pay, they can go to Phone Pay. So I don't want to tolerate any kind of downtime situation. मुझे redundancy चाहिए. I need redundancy all the time. कोई भी problem हो, the traffic switch be switch. So in that case, I cannot afford the regional outage. Then what I can do? I can set up the ASR, Azure Site Recovery. So Azure Site Recovery gives you the option of the live replication. ये आपको live replication का option देता है. Let's suppose your Paytm server is in UK South. आपका सर्वर UK South में लगा हुआ है. So it will give you the opportunity to migrate your workload, let's say, to your preferred location. मान लो कि UK South में problem है, so you can transfer your workload to the UK West. UK पूरे UK में ही problem है. Don't worry, we can transfer the workload to the US. US में नहीं करना, India is nearby to UK. I can transfer my workload to India. So on the live replication basis, my workload can be transferred to any other region, any other country, if the entire region goes down. So within few minutes, another location will be active. I can transfer all my workload to another region. And this is expensive, of course, क्योंकि एक टाइम पे दो regions पे आप replication कर रहे हो, so there will be network cost, there will be server migration cost also, but it is the way. It is expensive, but if the server is super critical, then we have to go with this concept. So ASR is one of the things. Then we discussed about VMSS. So VMSS stands for Virtual Machine Scale Set. This is related to the load. If there is a load on one server,
then it will create the copies of the servers according to the load. So इसकी थ्योरी मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा बाद में. Now when it comes to the practical, so we have to see the practical of AS. AS के अंदर ही हम क्लस्टर देखेंगे और रिडंडेंसी देखेंगे. These two are the concepts. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स है. क्लस्टर कैसे बनेगा, we will see that in the AS and AJ. उसमें रिडंडेंसी कैसे काम कर रही है, that we will see. So AS practical we will see, AJ practical we will see, and VMSS practical we will see. ये हम आज और कल के दिनों में खत्म कर लेंगे. ASR इज द टॉपिक ऑफ बैकअप. ये बैकअप एंड रीस्टोर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के बाद ये टॉपिक आएगा, बैकअप एंड रीस्टोर. सो दैट टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल ऑफ ASR. तब ये प्रैक्टिकल करेंगे हम, अभी नहीं, बिकॉज अभी इसके लिए बैकअप आना चाहिए आपको. सो AS, AJ एंड VMSS, दीज 3 प्रैक्टिकल्स वी विल टारगेट. इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी. ASR we will discuss at the end, बैकअप के टाइम पे. So let's proceed and let's do the practical. Practical करते हैं. So what I will do, I will first show you the practical of availability sets. AS का practical पहले दिखा रहा हूं मैं आपको. For this practical, I am going to use 2 FD. 2 FD यूज करूंगा मैं. 2 FD का मतलब है 2 रैक्स. मैं अपने सर्वर्स को 2 रैक में डिवाइड करना चाहता हूँ. एंड आई विल क्रिएट लेट्स से 3 VMs. मैं 3 VM बनाऊंगा एज पार्ट ऑफ माई क्लस्टर. मेरे क्लस्टर में 3 सर्वर्स चलने वाले हैं. तीनों सर्वर्स FD विल बी 2, मतलब 2 रैक्स में डिवाइड किए जाएंगे. एंड UD विल ऑल्सो आई चूज 2 UDs आई विल चूज. मतलब जब वो रीस्टार्ट करेंगे तो उनके नंबर स्टार्ट होंगे 0 1 देन 1, इस तरीके से. तो 2 लॉजिकल नंबर्स रीस्टार्ट के टाइम पे 2 रैक्स में मेरे सर्वर डिवाइड होंगे एंड माई सर्वर्स काउंट विल बी 3. 3 VM बनेगी जो कि 2 डिफरेंट रैक्स में डिवाइड होगी. FD का मतलब होता है रैक. 2 रैक्स में 3 VMs को डिवाइड किया जाएगा और उनके ऊपर लॉजिकल नंबर 0 1 दिया जाएगा, मतलब 2 काउंट्स दिए जाएंगे, ताकि जब भी माइक्रोसॉफ्ट को रीस्टार्ट करना हो तो जिस पे पहले 0 नंबर है उसको रीस्टार्ट करे, जब ये ऑनलाइन आ जाए तो 1 वाले को रीस्टार्ट करे. तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सो 3 VM बनाएंगे in 2 FD and 2 UD. So let's do this practical first. It is very simple. When you are deploying the virtual machine, एक और चीज का ध्यान रखना, the AS you can always select when you are deploying the virtual machine. जब आप VM डिप्लॉय कर रहे हो उसी टाइम पे आप AS चूज कर सकते हो. मीन्स FD and UD can always be chosen when you are deploying the virtual machine. VM बना देने के बाद आप लोग कभी भी उसको AS में नहीं डाल सकते. That is not possible. After the VM deployment is done, you cannot add that VM into the availability set. That is not possible. So during the VM deployment itself, you have to select whether it is going to become independent VM or it will be the part of AS. जब VM डिप्लॉय हो रही है उसी टाइम पे आपको चूज करना पड़ेगा कि या तो वो नॉन HA होगा. नॉन HA का मतलब है नॉन हाई अवेलेबिलिटी, क्लस्टर में होगा ही नहीं, और इट विल बी द पार्ट ऑफ AS, AJ और VMSS. ये डिप्लॉयमेंट के टाइम पे चूज करना पड़ता है हमें. वी कैन नॉट चेंज इट लेटर. सो लेट्स डू दैट. और अगर आपने एक बार उसको AS का पार्ट बना दिया, सो यू कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम द AS. उसके लिए आपको पूरी VM को डिलीट करना पड़ेगा. तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. अगर किसी कंपनी को उसको AS से हटाना है, इट मीन्स दैट VM हैज टू बी डिलीटेड. उसको दोबारा से VM बनानी पड़ेगी VM को डिलीट करके, क्योंकि कोई VM एक बार अगर AS का मेंबर बन चुकी है, सो इट कैन नॉट बी डिसजॉइंट. उसको आप हटा नहीं सकते उसके बाद. एक ही सॉल्यूशन है, delete the VM and recreate it in the independent mode. So let's do that. So let's go to the virtual machine और एक VM बनाते हैं. Right now there is no virtual machine. Any VM, whether it is Linux, whether it is Windows Server, it can be the part of AS. ऐसा नहीं है Windows Server ही AS का पार्ट होता है. आपका OS कुछ भी हो सकता है. It can be Linux, it can be Windows Server, it doesn't matter. क्योंकि अवेलेबिलिटी सेट्स आपके VM को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि OS को. तो VM कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो सकता है, लाइनेक्स, विंडो, फाइन, दैट इज फाइन. क्योंकि पूरे VM प्लेटफॉर्म को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपका AS. सेम गोज विद द AJ, सेम गोज विद द VMSS, सेम गोज विद द ASR. सारे प्रैक्टिकल में OS से कोई रिलेशन नहीं है. इट कैन बी लाइनेक्स बेस्ड, इट कैन बी विंडोज बेस्ड. So let's do that. So I will create a virtual machine now. Just go to create Azure virtual machine.
Now we have to provide the details. So I don't have any free subscription. I will just click on create new, then I will give the name. Here I will just type the name of the new VM. So I will give VM-01. Region, you can choose accordingly. I will go with the UK South. In the availability option, here you need to choose whether it is going to be the part of availability sets, see AS, availability zone, AJ और VMSS, virtual machine scale set. यहाँ चूज करना पड़ता है. If you don't want to keep this VM in high availability, then always choose no infrastructure redundancy required, जो कि अभी तक हम चूज करते आ रहे थे, क्योंकि हमारी VM उस टाइम पे किसी HA का पार्ट नहीं थी. इट वॉज इंडिपेंडेंट. ना वो AS का था, ना वो AJ में था, ना वो VMSS में. वो डिप्लॉय हो रही थी, कहाँ हो रही थी कुछ नहीं पता. इफ दैट रैक गोज डाउन, server will also be impacted. But now I need the high availability, so I will choose it accordingly. So अभी हम practical देख रहे हैं availability set का, so I will choose availability set. It will automatically distribute your virtual machines across multiple fault domains. मतलब आपके VMs को अलग अलग रैक में डिवाइड करेगा. That is the meaning of this. So let's choose availability set. Now scroll down. Now you need to create a availability set. If you already have a availability set, मान लो आपके पास पहले से ही एक ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर ऑलरेडी मान लो आपने 2 VMs चला रखी है, अब आप एक नई VM डिप्लॉय कर रहे हो और आप चाहते हो सेम अवेलेबिलिटी सेट का मेंबर बने, सेम ग्रुप का, देन यू कैन चूज योर अवेलेबिलिटी सेट नेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. इन माई केस आई डोंट हैव एनी अवेलेबिलिटी सेट, सो इट विल नॉट कम. आई हैव टू क्रिएट ए न्यू, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं. पहले से होता तो हम ड्रॉप डाउन से भी चूज कर सकते थे, जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको पहली बार बनाने के बाद. जमीर वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग. यस जमीर. सर इसमें जो ये यूडी और एफडी था, ये खुद से डिफाइन करना होता है या ऑटोमेटिक डिफाइन हो, नहीं मतलब नहीं, हमें ऑटोमेटिक होता है? हमें डिफाइन करना पड़ता है. अभी करेंगे हम ठीक है डिफाइन. सर। कितने रैक्स ओके, में थैंक यू डालोगे सर। और कितने लॉजिकल नंबर होंगे आप डिसाइड करोगे. ओके, थैंक यू सर। तो आई विल क्रिएट ए न्यू अवेलेबिलिटी सेट, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं. सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू. नाउ हियर यू नीड टू गिव द नेम. क्या नाम होगा आपके एस का? सो आई विल गिव AS-01. आप कुछ भी दे सकते हो ग्रुप का नाम. देन वी नीड टू डिफाइन द फॉल्ट डोमेन्स. कितने रैक्स में आप चाहते हो कि जो आप जितनी भी VMs बनाओगे इस अवेलेबिलिटी सेट में, विद इन हाउ मेनी रैक्स इट शुड बी डिवाइडेड. तो रैक आप चूज करते हो, जैसे बाय डिफॉल्ट 2 है, मतलब कि जो भी VM बनेगी वो 2 रैक्स में डिवाइड होगी. आप इसको मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हो? सो यू कैन मैक्सिमम टेक इट टू 3. ये आपको 3 दिखा रहा है. हियर इफ यू विल चूज 5, दैट इज ऑल्सो फाइन. हर रीजन का अलग अलग होता है एक्चुअली. जैसे कुछ रीजन में है कि 5 फाइल डोमेन सपोर्ट कर जाते हैं, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 5 होगा. कुछ रीजन्स में है मैक्सिमम 3 फॉल्ट डोमेन्स में जा सकती है, बट मोस्टली इन 90% ऑफ द केसेस यू कैन चूज 3 फॉल्ट डोमेन्स. मतलब 3 रैक्स में आपके क्लस्टर्स की VM को आप डिवाइड कर सकते हो. 90% रीजन में ऐसी ही लिमिटेशन है. बाकी कुछ कुछ जगह पे 5 भी है, बट इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो इट इज 3. तो 3 फॉल्ट डोमेन होते हैं रिकमेंडेड डिफॉल्ट केसेस में. एंड अपडेट डोमेन विल बी बाय डिफॉल्ट 5. मैक्सिमम यू कैन टेक इट टू 20. तो ये 20 तक जाता है और 20 ही रहता है. कोई भी रीजन आप चूज कर लो, दैट इज अ लिमिट. आप यूडी के नंबर जो है 20 तक डिफाइन कर सकते हो, मतलब अपडेट डोमेन के लॉजिकल नंबर 20 तक जा सकते हैं. और एफडी के 90% रीजन्स में 3 पे जाते हैं, अदरवाइज 5 तक भी चले जाते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इट इज 3. तो इट्स अप टू यू, अब आप कौन सा नंबर देना चाहते हो. आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल डिवाइड माई VMs इनटू 2 डिफरेंट रैक्स. मैं चाहूंगा कि मेरी VMs 2 अलग अलग रैक में डिवाइड हो और मेरे अपडेट डोमेन 3 रहे. 3 नहीं, ये भी 2 ही रखते हैं हम. 2 रैक के नंबर, 2 लॉजिकल नंबर्स हो मेरे सर्वर के ऊपर. सर्वर में कितने डिप्लॉय करूंगा? आई विल डिप्लॉय 3 वर्चुअल मशीन. अभी मैं पहला VM बना रहा हूँ, इसके बाद 2 और बनाने हैं मुझे. सो 2 FD मतलब 2 अलग अलग रैक में, एंड 2 लॉजिकल नंबर्स 2 UD. देन क्लिक ऑन ओके. ओके हो गया. नाउ इट हैज चूजन वन ऑफ द न्यू अवेलेबिलिटी सेट. नाउ सिक्योरिटी टाइप ये आपके ऊपर है, ये मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड ट्रस्टेड. आई विल गो विद द ट्रस्टेड लॉन्च. इमेज इज ऑल्सो अप टू यू. आई विल गो विद
विंडोज सर्वर 2000 लेट्स से 22, इस पे चले जाते हैं हम लेटेस्ट वाले पे। नाउ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो अप टू यू, आप किस कॉन्फ़िगरेशन का चूज करना चाहते हो। आई विल गो विथ 3.5 GB रैम, 1 कोर ऑफ सीपीयू, क्योंकि सर्वर में हमें कुछ चलाना तो है नहीं अभी फिलहाल, अभी तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क देख रहे हैं। सो 3.5 GB रैम इज ओके, क्योंकि कोई वर्कलोड चलेगा नहीं अभी एज सच। देन वी हैव टू चूज द यूजर नेम, देन द पासवर्ड। वही सेम, अब सब कुछ सेम रहेगा, बस वहाँ पे हमें वो चूज करना था अवेलेबिलिटी सेट, दैट्स इट। नाउ वी डोंट हैव टू चूज एनीथिंग, अब सब कुछ सेम रहने वाला है। तो पोर्ट नंबर 3389 हैज टू बी इनेबल्ड। नेक्स्ट, कोई डिस्क ऐड करनी है देन यू कैन। नेक्स्ट 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 एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। टैक्स देने हैं तो दे दो, अदरवाइज यू कैन स्किप। कंपनी में इट इज मैंडेटरी टू गिव द टैक्स ऑल द टाइम। So it is running the validation now. Validation is okay. Now we can click on create. So VM create होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ how the numbers will look like. वहाँ पे FD UD के नंबर आएंगे अब। So let's wait for the creation. Meanwhile, so this VM is deployed. पहली VM हमारी बन चुकी है and it is in availability set. Now let's see कैसे पता चलेगा availability set में। ये तो चलो हमने अभी सामने बनाई है ना, तो हमें पता है। वी आर इन द सेशन। मैंने आपको प्रैक्टिकली इसी चीज का दिखाया है, सो आपको रहने वाला है। तो पोर्ट नंबर 3389 हैज टू बी इनेबल्ड। नेक्स्ट, कोई डिस्क ऐड करनी है देन यू कैन। नेक्स्ट 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 एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। टैक्स देने हैं तो दे दो, अदरवाइज यू कैन स्किप। कंपनी में इट इज मैंडेटरी टू गिव द टैक्स ऑल द टाइम। So it is running the validation now. Validation is okay. Now we can click on create. So VM create होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ how the numbers will look like. वहाँ पे FD UD के नंबर आएंगे अब। So let's wait for the creation. Meanwhile,
तो दिस VM इज डिप्लॉयड, पहली VM हमारी बन चुकी है एंड इट इज इन अवेलेबिलिटी सेट। नाउ लेट्स सी कैसे पता चलेगा अवेलेबिलिटी सेट में। ये तो चलो हमने अभी सामने बनाई है ना, तो हमें पता है वी आर इन द सेशन। मैंने आपको प्रैक्टिकली इसी चीज का दिखाया है, सो आपको वैसे ही पता है कि दिस VM इज इन द अवेलेबिलिटी सेट। हाउ इन द कंपनी यू विल गेट टू नो दैट द VM इज इन द अवेलेबिलिटी सेट? कंपनी में कैसे पता चलेगा? तो किसी भी VM में, लेट्स से इफ आई विल गो टू माय VM01, ये बनाई है ना मैंने। इफ आई विल क्लिक ऑन दिस अंडर द ओवरव्यू, ओवरव्यू के अंदर इफ यू विल स्क्रॉल डाउन a little bit, so under the availability plus scaling you can see this VM is the part of availability set। ये VM availability set का part है and you can see the name of availability set also, it is AS-01। ये AS-01 का part है। और यहाँ पे देख रहे हो फॉल्ट डोमेन दिखा रहा है जीरो। फॉल्ट डोमेन जीरो मतलब जीरो से स्टार्ट होती है नंबरिंग। जीरो मीन्स फर्स्ट रैक, वन मीन्स सेकेंड रैक। जैसे मैंने दो एफडी दिए थे ना, दो एफडी का मतलब है जीरो एंड वन, ये दोनों काउंट करके दो बनता है। मतलब जीरो भी काउंट होता है यहाँ पे। जीरो मीन्स रैक नंबर वन, वन मीन्स रैक नंबर टू। सो ये जो VM बनी है VM01, ये कहाँ पे बनी है? यूके साउथ में बनाई है मैंने। इट इज इन द यूके साउथ एंड इन यूके साउथ दिस VM इज इन द रैक नंबर वन। रैक जीरो का मतलब है रैक नंबर वन में है ये, मतलब यूके साउथ के डेटा सेंटर के पहले रैक में इंस्टॉल्ड है ये VM। इसका ये मतलब है। एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस, अगर आप इस पे क्लिक भी करते हो अवेलेबिलिटी प्लस स्केलिंग पे, so it will take you to the availability plus scaling area, and here if you click on availability sets, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा it is the part of availability set AS-01, and if you click on this तो ये आपको availability set पे ले जाएगा। देखो इसके अंदर एक VM कनेक्टेड है, ये ग्रुप है। availability set means it is a group। किसका ग्रुप? FD और UD का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आपको देखो क्लियर कट दिखा रहा है वन VM इज रनिंग इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में एक VM चल रही है। इट इज इन द फर्स्ट रैक, रैक जीरो का मतलब है फर्स्ट रैक पे, और इसको लॉजिकल नंबर क्या मिला है रीस्टार्ट होने का? जीरो। दो एफडी आपने चूज किए थे, सर्वर अभी एक ही चल रहा है, सी सर्वर एक ही है, अभी बनाने पड़ेंगे हमें। दो एफडी आपने चूज किए हैं, अपडेट डोमेन भी आपने दो चूज किए हैं, बट अभी एक ही VM चल रही है। अब ये और समझ में आएगा जब मैं एक और VM बनाऊंगा, अब देखना। नाउ यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। अभी ये वाली VM पहले रैक में चल रही है और इसका लॉजिकल नंबर जीरो है, यूडी नंबर इज जीरो। और यहाँ पे बता रहा है एक अवेलेबिलिटी सेट में आप मैक्सिमम 2000 VMs ऐड कर सकते हो। ये देखो, तो ये इसकी लिमिट है। और VMSS में भी इतना ही कर सकते हो। ग्रुप में, एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। यूडी एफडी के तो अलग नंबर है, एफडी कैन बी 3, यूडी कैन बी 20, ये तो नंबर ग्रुप के हो गए। बट इस एक ग्रुप के अंदर आप इतने VMs ऐड कर सकते हो 2000, एक एक ग्रुप के अंदर, एक एक अवेलेबिलिटी सेट में। अभी एक ही किया है मैंने, इट्स ओनली वन। और करते हैं। इससे पहले एक और चीज दिखा देता हूँ। इफ यू विल डायरेक्टली सर्च फॉर द अवेलेबिलिटी सेट इन द सर्च बॉक्स, तो अवेलेबिलिटी सेट डायरेक्ट भी ओपन हो जाता है। इफ यू क्लिक ऑन दिस यू कैन सी योर AS-01। इफ यू क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन सी योर VM। अब अपने UD FD यहाँ से भी चेक कर सकते हो। हाउ मेनी VMs आर कनेक्टेड, यू कैन ऑल्सो चेक इट फ्रॉम हियर। इफ यू गो टू द सेटिंग्स इन द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज समथिंग यू कांट चेंज, ये सब कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। इफ यू गो टू द वर्चुअल मशीन, सो यू कैन सी वन VM इज कनेक्टेड, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। इफ यू गो टू द प्रॉपर्टी, यहाँ से आप भी डिटेल्स चेक कर सकते हो, FD इज टू, UD इज टू, बट नथिंग इज चेंजेबल। यहाँ से कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती। सो यू कैन नॉट डिसजॉइन एनी VM। आपने अगर एक VM को UD या FD का पार्ट बना दिया है, इफ इट इज द पार्ट ऑफ अवेलेबिलिटी सेट, देयर इज नो ऑप्शन टू रिमूव इट। आप उसको हटा नहीं सकते। एक ही तरीका है, डिलीट द VM को डिलीट करो, देन रिक्रिएट द VM इन द नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। अगर एक VM AS का पार्ट बन गई है, सो यू कैन नॉट रिमूव इट। एंड द वेरी गुड थिंग इज माइक्रोसॉफ्ट डोंट चार्ज फॉर द अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट का पैसा नहीं लेता माइक्रोसॉफ्ट, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये जो आप रैक डिवाइड करते हो ना, दो रैक्स में मेरे सर्वर चलेंगे, एक सर्वर यहाँ एक सर्वर यहाँ, इसके कोई पैसे नहीं लेता, इट इज फ्री। बट जो VMs जितनी चलाओगे उसके तो पैसे लेगा। अगर आप 2 VMs चला रहे हो, तो 2 VMs के पैसे वो लेगा। इफ इट इज 5 VMs, इट विल चार्ज यू फॉर द 5 VMs। बट ये 5 VMs को अगर आप तीन रैक में डिवाइड करके चल रहे हो मान लो इस तरीके से, तो दे विल नॉट चार्ज यू फॉर द रैक्स।
वो आपसे रैक वैक के पैसे नहीं लेगा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री है। अवेलेबिलिटी जोन इज ऑल्सो फ्री। आपने अगर 3 अलग अलग डेटा सेंटर में 3 VMs की कॉपी बनाई है, दैट इज फ्री। 3 VM का पैसा लेगा बट कॉपी बनाने का पैसा नहीं लेगा। सिमिलरली इन द एएस इट विल नॉट चार्ज यू फॉर द रैक डिवीजन। जो आप रैक को अलग अलग डिवाइड कर रहे हो, पहली VM यहाँ दूसरी यहाँ, तो रैक के पैसे नहीं लेगा, इट इज फ्री। दैट इज अ गुड थिंग कि VM का चार्ज कर रहा है बट एडिशनल आपसे रैक्स अलग अलग करवाने का पैसा नहीं लेगा माइक्रोसॉफ्ट। बट ASR में पैसे लगते हैं। ASR में क्योंकि आप रीजन ही अलग अलग ले रहे हो, पहली VM यूके साउथ है, उसकी कॉपी आप यूएस में ले जा रहे हो, सो दैट विल बी समहाउ कॉस्टली। बट AS एंड AJ इज फ्री, वहां पे आपसे सिर्फ VM का चार्ज किया जाता है, ना कि रैक्स का और ना कि डेटा सेंटर का। सो दैट इज वन ऑफ द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दैट यू शुड नो। सो 1 VM इज क्रिएटेड, एक VM मैंने बनाई दी है, इट इज द पार्ट ऑफ AS। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर VM, एक और VM बनाते हैं। तो क्लिक ऑन क्रिएट, गो टू एज्योर वर्चुअल मशीन। नाउ आई विल मेक इट इन द सेम रिसोर्स ग्रुप, मेरे पास ऑलरेडी रिसोर्स ग्रुप तो है ही। सो आई विल जस्ट चूज माई पॉप, पॉप बनाया था मैंने। सेकेंड VM नेम विल बी VM-02, इट विल बी इन द यूके साउथ। अवेलेबिलिटी ऑप्शन विल बी AS, मैं इसको AS का पार्ट बनाऊंगा, अवेलेबिलिटी सेट्स। एंड राइट नाउ आई ऑलरेडी हैव ए अवेलेबिलिटी सेट। या तो मैं नया बना लूं, बट इफ आई विल मेक इट न्यू सो इट विल बिकम ए न्यू अवेलेबिलिटी सेट। बट मैं चाहता हूं मेरे सेम ग्रुप के अंदर ये वाली VM ऐड हो, जो मैंने अभी AS बनाया है, इन द सेम अवेलेबिलिटी सेट माई न्यू VM शुड बी एडिट। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एंड यू कैन सी माई AS-01 इज कमिंग, आ रहा है, जस्ट चूज इट, चूज कर लो। नाउ रेस्ट ऑफ द ऑप्शन विल बी एज इट इज, बाकी की चीजें सब कुछ सेम रहने वाली है। आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, आप करो अपने हिसाब से। आई विल गो विद द सेम यूजर ID पासवर्ड, लेट्स क्रिएट दैट पासवर्ड। पासवर्ड ये डाल दिया। नाउ नेक्स्ट 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 एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। सो नाउ दिस VM विल बिकम इन द सेम अवेलेबिलिटी सेट। कुछ फेल हुआ है तो नेटवर्किंग में कुछ फेल हुआ है, गो टू नेटवर्किंग, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा वो उसका वो चूज करना था, वेट, वी हैव टू रिफ्रेश द पोर्टल। जब ऐसे एरर्स आए ना नेटवर्किंग वगैरह में, तो एक बार पोर्टल रिफ्रेश करके दोबारा से डिटेल डाल दिए करो। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द सिंक, क्योंकि एकदम से बनाया एकदम से जा रहे हो, सो सम टाइम दिस हैपन्स। वेयर इज माई लैपटॉप चार्जर, गेटिंग ट्रेंड, या नाउ इट इज। ये मैंने 3-4 बार क्लिक कर दिया ना, इट इज टेकिंग सम टाइम, लेट मी रिफ्रेश वंस। या नाउ इट विल नॉट टेक मच टाइम। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंसेस, इसको कहते हैं जुगाड़ करना। और अगर तब भी ज़्यादा टाइम ले रहा है, यू कैन क्लोज द ब्राउजर एंड यू कैन अगेन ओपन द पोर्टल लाइक दिस। कभी कभी नेटवर्क इश्यूज की वजह से भी पोर्टल स्लो होते हैं। सो नाउ इट इज फाइन। नाउ लेट्स क्रिएट अनदर VM, मतलब बीच में से रिफ्रेश हो गया है, सो वी हैव टू क्रिएट इट अगेन। तो दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। तो गो टू द क्रिएट, गो टू वर्चुअल मशीन, व्हाट स्टक, network issue, yeah, now let's fill the details। VM-02 availability set, I will choose the same availability set, rest of the thing is fine। नेक्स्ट नेक्स्ट, थोड़ा इज्जत से नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे देन अगेन देयर विल बी सम इश्यूज। ये सब लोड होने देते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड वी विल स्टार्ट द नेटवर्किंग। हम नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीकेंड से एज्योर में।
वीनेट, सबनेट, ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे हम। सो इट डज नॉट टेक मच टाइम, कभी कभी लेता है बिकॉज पोर्टल समटाइम्स गेट स्लो, अदरवाइज अभी तक तो आ जाता है ये। क्लाउड में यही होता है, वी आर डिपेंडेंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एंड AWS। सो निरंजन वांट्स टू आस्क समथिंग। यस निरंजन। इसमें सब नेटिंग का भी कॉन्सेप्ट रहता है क्या ज्यादा? नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नेटवर्किंग वालों का काम है। ठीक है ठीक है। सर आपने बोला था वो पासवर्ड रीसेट करना और अभी अभी दिखा ठीक। देता हूँ। VMSS में या ये सारे में कौन डिसाइड करता है ये सारे VM क्रिएट करना? ये सब आर्किटेक्ट डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी VMAS का पार्ट होनी चाहिए, कौन सी AZ का और कौन सी VMSS में। और बिजनेस केस पे भी डिपेंड करता है, जैसे मान लो हम किसी डेवलपमेंट टीम को सपोर्ट दे रहे हैं, टीम का जो हेड होगा ना वो भी डिसाइड करेगा कि यार ये सर्वर्स बड़े क्रिटिकल है, इसको एक काम करो AS में डाल दो। या फिर मान लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इन द सेंस, मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गूगल पे की एप्लीकेशन। अब गूगल पे का एक डिपार्टमेंट होगा कंपनी के अंदर जो गूगल पे एप्लीकेशन को संभाल रहा होगा। इस डिपार्टमेंट का एक हेड होगा जिसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट VP। ये जो बंदा होगा ना, इनका जो हेड होगा इस एप्लीकेशन का, वो चाहेगा ना कि ये एप्लीकेशन चलती रहे, क्योंकि इससे कंपनी को बिजनेस आ रहा है ना। ये एप्लीकेशन किस पे चल रही है? ये आपके सर्वर पे चल रही है। सर्वर कौन सा है? आपका क्लाउड के ऊपर है। तो ये चलवा तो आपके क्लाउड के सर्वर पे रहा है, बट ये एप्लीकेशन किसी दूसरे डिपार्टमेंट की है ना, गूगल पे। तो जो इस एप्लीकेशन को संभाल रहा है जो बंदा, वो हेड, वो बंदा डिसाइड करेगा कि यार ये एप्लीकेशन ना बहुत क्रिटिकल है, इससे कंपनी को रेवेन्यू आता है, पैसा आता है। तो वो बंदा आपके आर्किटेक्ट को बताएगा कि भाई ये एप्लीकेशन बंद नहीं होनी चाहिए, तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाओ कि ये बंद ना हो। तो अब आपका आर्किटेक्ट बोलेगा अच्छा सर एक काम करते हैं, बहुत ही क्रिटिकल है अगर, तो इसको फिर हम लोग उसमें डाल देते हैं, अवेलेबिलिटी जोन में डाल देते हैं, या फिर ASR में इसको रख लेते हैं। फिर ये बातचीत करेंगे आपस में, दे विल हैव द डिस्कशन कि भाई इतना खर्चा आएगा, ऐसे ऐसे ये सर्विस काम करेगी, इतना ऐसे होगा, तब जाके दे विल कम टू द एग्रीमेंट। तब फिर फाइनली डिसाइड होगा कि हाँ AJ में डाल दो। तो जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो हर डिप्लॉयमेंट में आपको डिस्कस नहीं करना है कि ये AJ में डालूं या VMSS में। जब आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपकी जो टिकट है जहां से रिक्वेस्ट आई है, जैसे मान लो कि ये रिक्वेस्ट आई है किसी डेवलपमेंट टीम से, तो वो प्री डिसाइडेड होगा कि जब भी डेवलपमेंट टीम से कोई रिक्वेस्ट आती है तो उनकी VM को मान लो AS में डाल देना या AJ में डाल देना, इस तरीके से पहले से ही डिसाइडेड होगा। तो जब आप ज्वाइन करोगे, देयर विल बी KT, नॉलेज ट्रांजिशन। उसमें आपको बताएंगे कि यार इस डिपार्टमेंट से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये सर्वर पे ये चीजें फॉलो करनी है हमें। मतलब जब हम सर्वर बनाएंगे तो या तो वो AJ में रहेगा, या तो AS में रहेगा, या तो VMSS का पार्ट रहेगा। तो ये चीजें पहले से ही प्री डिसाइडेड होती है कंपनी में। इज दैट क्लियर? हाँ। यस सर, यस। हेलो। हाँ, यस हेलो सर। यस यस। सर, ये यहाँ पर डेप्लॉयमेंट हुआ है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर डाउनलोड, तो ये किस लिए यूज होता है? कौन सा? ये सर ये, यस यस। ये कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करेगा, मतलब इसको ये वाली डिटेल्स ये जो होती है ना, ये देखो, ये क्लिक किया मैंने, ओपन किया, तो एक ऐसे फाइल होगी जिप फाइल, इसके अंदर ये जेसन है, इसको ओपन करोगे, इसको विजुअल स्टूडियो कोड ये सब बाद में बताऊंगा, अभी नोटपैड में ओपन कर लो इसको। तो एक ये स्क्रिप्ट है कि इसको बनाने के पीछे, मतलब जो अभी आपने डिप्लॉयमेंट किया है उसको बनाने के पीछे ये वाली स्क्रिप्ट काम कर रही थी एक्चुअली। हर चीज के पीछे कोड काम करता है ना, यस सर। IT है ना, ये हर चीज के पीछे प्रोग्रामिंग काम कर रही है। तो ये जो VM आपने बनाई है, इसको बनाने के पीछे ये प्रोग्रामिंग काम कर रही है। और ये है जैसन, इसको बोलते हैं JSON, जावा स्क्रिप्ट नोशन। मतलब ये जावा में एक प्रोग्रामिंग चली बैकएंड में, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वर एबल टू डिप्लॉय द VM। और इसको आप पढ़ भी सकते हो, देखो ये रीडेबल है। जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, जावा लैंग्वेज नहीं है ये, जावा लैंग्वेज इज वेरी टफ। दिस इज जावा स्क्रिप्ट नोशन, इसका आपसे कोई काम नहीं है, ये बैकएंड में चलती है। देखो ये पूरा आप पढ़ पाओगे इसको, देखो अभी ये बता रहा है ID का मतलब है सब्सक्रिप्शन ID, दिस इज योर सब्सक्रिप्शन ID, जिसके अंदर आपने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है पॉप नाम से। पॉप बनाया ना मैंने, देखो दिखा रहा है पॉप बनाया आपने। और पॉप के अंदर ये बता रहा है कि आपने क्रिएट करी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022, जिसका ये ID है, ये सर्वर ID है। फिर आपने उसमें टैक्स नहीं डाले, ये देखो टैक्स ब्लैंक है पूरा पूरा, वी हैव नॉट एंटर्ड एनी टैक्स। फिर ये आपको बता रहा है, देखो यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन आपकी UK साउथ है।
और ये स्ट्रिंग वगैरह ये प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है, ये सब समझने की जरूरत नहीं है आपको। इफ समवन इज फ्रॉम द सीएस बैकग्राउंड, जिसको थोड़ी कोडिंग की नॉलेज है, वो तो स्ट्रिंग समझ जाएगा क्या होता है। स्ट्रिंग मीन्स एग्जाम्पल, बट इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं आपको स्क्रिप्ट समझा रहा हूँ। ये यूके साउथ में देखो आपने वीएम बनाई है, तो यूके साउथ में बनी है, ठीक है। उसके बाद ये सब ये इनका वो होता है बूलियन अलजेब्रा, इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट, ये सब प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। फिर ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना है देखो, एनएसजी। फिर आपने आरडीपी इनेबल कर रखा है, ये देखो। और आरडीपी की प्रायोरिटी नंबर 300 है, ये दिखाऊं आपको, ये देखो। जब आप इस वीएम पे जाओगे जो आपने बनाई है, सेकंड नंबर वीएम, एंड इफ यू गो टू द नेटवर्क सेटिंग्स, तो यहाँ पे दिखाएगा देखो आरडीपी कितने नंबर पे इनेबल्ड है। सो सी, आरडीपी प्रायोरिटी नंबर इज 300, तो ये देखो इस रूल में दिखा रहा है इट इज 300 नंबर। प्रोटोकॉल टीसीपी है, आपने आरडीपी को अलाउ किया है इनबाउंड, यही सब किया था हमने। 3389 नंबर पोर्ट इज इनेबल्ड, देखो इनेबल है। स्क्रॉल डाउन, ये आपकी नेटवर्क डिटेल्स है, ये सब पब्लिक आईपी ऐड हुआ है, जो हम नेक्स्ट वीकेंड में पढ़ेंगे नेटवर्क डिटेल्स वगैरह, तो ये वही है जो हमने नेक्स्ट नेक्स्ट किया था। इफ यू स्क्रॉल डाउन, वर्चुअल मशीन नेम VM02, ये देखो दिखा रहा है। इफ यू फर्दर स्क्रॉल डाउन, रिसोर्स ग्रुप का नाम, फिर प्रीमियम LRS वाला आपने वो OS डिस्क चूज किया था, हमने नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया था। बाय डिफॉल्ट क्या था वो, प्रीमियम LRS, मतलब वो प्रीमियम SSD वाली हार्ड डिस्क है। पीएम का साइज दिखा रहा है देखो, DS1V2 3.5 GB रैम 1 CPU वाली। तो ये वही सब है, पूरी सेटिंग दिखाएगा, स्क्रॉल डाउन करते रहोगे। और देखो अवेलेबिलिटी सेट भी दिखाएगा अभी यहाँ पे। इफ यू एडमिन पासवर्ड, वो आपको दिखाता नहीं है बिकॉज इट इज सिक्योर, तो एडमिन पासवर्ड तो नहीं दिखाएगा क्या लिखा हुआ है, बट यूजर नेम देख पा रहे हो, VM एडमिन। यस तो सर, ये आपने VM एडमिन दिया था। फिर आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करोगे, सिक्योरिटी टाइप हमने ट्रस्टेड लॉन्च लिया था। देन प्रोविजनिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, इतना टाइम लगा, इतने टाइम पे हमने बनाया था। तो ये सारी चीजें, और इसमें कहीं पे अवेलेबिलिटी सेट भी होगा, इफ यू सर्च अबाउट इट तो वो भी दिख जाएगा। ये रहा देखो अवेलेबिलिटी सेट AS01। तो दिस इज द कोड विच वर्क्स इन द बैकएंड, इसी पूरे स्क्रिप्ट की वजह से वो VM डिप्लॉय हुई है एक्चुअल में। एंड दिस इज इन जावा लैंग्वेज, JSON। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सपोर्ट्स द JSON फॉर्मेट। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर JSON को सपोर्ट करता है किसी भी डिप्लॉयमेंट के पीछे। जावा स्क्रिप्ट नोशन, दैट इज द फुल फॉर्म। तो इसी लैंग्वेज में सारे के सारे डिप्लॉयमेंट्स काम करती है एज्योर के ऊपर। इवन ये तो हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। इफ आई कैंसल इट एंड इफ आई गो टू द वर्चुअल मशीन, आप किसी भी रिसोर्स पे जाओ, लेट्स से इफ आई गो टू माय VM01, इफ आई क्लिक ऑन दिस, सो ऑन द राइट साइड you will see there is an option JSON view under the overview with every resource। हर रिसोर्स में JSON view होता है। if you click on this, so you would be able to see the details। देखो वही चीजें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। VM का नाम आप देख पाओगे, सब चीजें जो अभी मैंने आपको पढ़ के दिखाई, एवरीथिंग इज हियर। इसी कोड में ये पूरी VM बनी है। और कल को गलती से, अभी एक स्टार्टिंग में एक डिस्कशन हो रहा था ना हमारा, कि गलती से मान लो मैंने VM डिप्लॉय कर दी और मेरे को यूजर नेम मैंने क्या डाला मुझे नहीं पता। जैसे वो एक बंदा अभी बोल रहा था कि रिमोट नहीं ले पा रहा, मैंने उसको बोला माइट भी पासवर्ड या तो गलत हो, या तो यूजर नेम वो डाल के भूल गया होगा उसने क्या डाला है। इन केस यू फॉरगेट दैट व्हाट इज द यूजर नेम ऑफ दिस सर्वर, इस सर्वर का यूजर नेम क्या है, अगर आप भूल जाओ कि मैं जब एक्सेस करूंगा व्हेन आई विल टेक द आरडीबी, मान लो पासवर्ड मुझे पता है बट आई फॉरगेट द यूजर आईडी, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे मैंने कुछ डाल दिया, अब मैं भूल गया, या पासवर्ड में भूल गया। पासवर्ड चेंज करने का तो तरीका है, यू कैन गो टू द VM, यू कैन स्क्रॉल इट डाउन, एंड ऑन द बॉटम अंडर द हेल्प देर इज ऑप्शन ऑफ रीसेट पासवर्ड। आप इस पे क्लिक करो और यहाँ से जाके पासवर्ड कभी भी चेंज कर दो। यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, नया पासवर्ड, पुराना याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर द एडमिन, सो यू कैन चेंज द पासवर्ड एट एनी टाइम। आप नया पासवर्ड डालो, कंफर्म करो, अपडेट करो, पासवर्ड विल बी रीसेट। यहाँ से आपको यूजर नेम दिख जाता है कि यूजर नेम क्या है। तो VM एडमिन डाला था, यहाँ दिख गया, बट इन केस इट इज नॉट कमिंग, मान लो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे पता करोगे यूजर नेम क्या है। सो गो टू द रिसोर्स, VM पे जाओ, गो टू द JSON व्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इफ यू स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको लिखा मिलेगा, देखो ये रहा, एडमिन यूजर नेम इज VM एडमिन। तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हो आप। और पासवर्ड चेंज वो रीसेट पासवर्ड में जाके कर लो। अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू। सो पूजा वांट्स टू आस्क समथिंग आई गेस, हैंड रेज कर रखा है। हेलो। यस पूजा। सर, जैसे कि हमें मतलब बताया गया है कि हमें केटी मिलता है हम्म कंपनी में ज्वाइन करने के बाद,
तो हम्म। अभी अब जब हमें नेटवर्किंग में केटी मिला था तो हमें कुछ टाइम मतलब था, जैसे कि 1 मंथ बोल सकते हैं कि अगर कुछ मिस्टेक्स होती है या फिर मतलब कुछ नहीं समझता है तो वो थोड़ा ढील देते हैं 1 मंथ हाँ तक। वो ऐसे ही होता है, वो 1 मंथ क्या, वो ज्यादा भी होता है, वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरीके से होता है वो थोड़ा। इट इज लाइक ए ट्रेनिंग पीरियड यू कैन से। या बट अभी जब हम इसमें जाएंगे एज्योर में, हम्म। तो जैसे कि ये पूरा क्लाउड पे चलता है सर, इसमें इसमें बिजनेस इम्पैक्ट होने के चांसेस रहते हैं या फिर थोड़ा क्रिटिकल ये रहता है, तो फिर वहाँ पे भी हमें थोड़ा ऐसे लाइक कुछ ट्रेनिंग पीरियड की जैसा लाइक 1 मंथ और समथिंग होगा थोड़ा होगा बहुत। ऑब्जर्वेशन 1 महीने से ज्यादा ही होगा, 3 मंथ्स तक चलता है मोस्टली। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ इसी तरीके से चलता है। स्टार्टिंग में आपको इवन हाई टिकट देंगे भी नहीं। जब कभी आप कितने भी बड़े लेवल पे ज्वाइन करोगे, दे वांट टू फर्स्ट बिल्ड द ट्रस्ट। तो पहले आपको वो नॉर्मल चीजों से ही काम करवाना स्टार्ट करेंगे। उनको लगेगा कि यार ये बंदा कर पा रहा है, देन फिर वो धीरे धीरे आपका केटी बढ़ा के आपको एडवांस चीजों पे लेके जाएंगे। कभी भी स्टार्टिंग में आपको क्लस्टर संभालने देंगे भी नहीं वो। तो नॉर्मल टिकट्स आएगी स्टार्टिंग में आपके पास, जैसे कि डिस्क का साइज चेंज कर दो, मतलब वीएम में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, उसको ठीक कर दो, पैचिंग कर लो, या फिर आप डिस्क अटैच करके दे दो, या फिर आप वीएम डिप्लॉय कर दो। मतलब जो नॉर्मल है, जिससे कोई रिस्क ना हो। आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई सर्वर की माइग्रेशन कर दो एएसआर के थ्रू, दूसरे रीजन में सर्वर डाउन हो गया, तो ये चीजें स्टार्टिंग में नहीं देंगे आपको। ओके सर। तो ट्रेनिंग, मतलब उसको केटी का जो पूरा सेशन होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, उसमें आपको प्रॉपर ऑब्जर्व किया जाएगा। आपके साथ रहेंगे आपके टीएल या कोई इंजीनियर बिठा देंगे आपके साथ। वो आपको दिखाते रहेगा पहले तो स्टार्टिंग में कि जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास टिकट आई है, यू जस्ट वेट एंड वॉच। वो आपको बिठा बिठा के दिखाएगा कि मैं ऐसे करता हूँ, तू भी ऐसे करियो। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं है टिकट विकट पे काम करने दे देंगे, नो। ओके वो सर। हर कंपनी में ऐसा ही होता है, वो सामने वाला बंदा करेगा जो ऑलरेडी वहाँ पे काम करता है। ही इज अवेयर अबाउट द प्रोसेस, तो वो आपको रिमोट पे, अगर आपकी वर्क फ्रॉम होम है तो रिमोट पे लेके दिखाएगा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो तेरे को भी ऐसे ऐसे ही करना है। सामने सामने बैठे हो तो सामने बिठा के दिखाएगा, अगर वो बंदा ही बाहर का है तब भी रिमोट पे ही दिखाएगा। तो डिपेंड्स कौन सी कंपनी में हो, बट यस, स्टार्टिंग में ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट प्रोडक्शन में ले जाके फेंक देंगे कि जाओ पहला दिन है, जाओ करो अब ट्रबल शूटिंग या टिकट डिप्लॉय करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये किसी भी कंपनी में नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ रियल प्रोडक्शन। ऐसे तो फिर तो कुछ कांड हो सकते हैं। सो इट विल नॉट यस हैपन। वही सर वही। और जैसे सर अभी मतलब अभी जो हमारा तो पोजीशन नेटवर्किंग में इतना कुछ हाई नहीं है, बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग है। तो हम्म। इसमें तो केटी 3 दिन में मतलब मुझे तो 3 दिन में दिया गया था सर। हम्म। और वो बहुत ही वो जो भी देने वाले थे उनका ऑब्जर्वेशन भी बहुत कम था, ऐसे कुछ नहीं। और आफ्टर अ मंथ उन्होंने कम्प्लीटली ढकेल देना ही चालू कर दिया था सब कुछ। अभी आप करते क्या हो, सर्विस डेस्क पे काम करते हो? यस यस। सर्विस डेस्क पे तो फिर भी इतना हेल्प कुछ डेस्क। ज्यादा है भी नहीं ना। हाँ सर मतलब ठीक है सर, उनका जैसे कि पेरोल पे तो नहीं है हम अभी, हम्म। लेकिन जो कंपनी है जो क्लाइंट है उनके कुछ अलग अलग भी रोल्स रहते हैं, तो वो भी डायरेक्टली मतलब डाल देना चालू कर दिया था, जो कि रिगार्डिंग है भी नहीं, मतलब उनके काम खुद पे ढकेलना ऐसा कुछ। सर्विस डेस्क पे तो मतलब सब तरीके का ही काम करवाते हैं, ये कॉल भी वो कॉल भी, तो ऐसा तो नहीं होगा। एंड केटी राउंड में ऐसा नहीं है आपसे काम करवाया जाएगा स्टार्टिंग में। 1 मंथ तो वैसे भी नहीं करवाया जाता है, इट विल बी द ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ थिंग। बाकी ऐसा भी नहीं है कि सेकंड मंथ से भी करवाया जाता है। प्रोजेक्ट अगर बहुत ही क्रिटिकल है तो ऐसा नहीं है किसी के ऊपर डिपेंडेंसी डालेंगे, तो साथ में बंदा रहेगा। और कभी भी आप फंस जाओ, इन केस, ऑलवेज सीक द हेल्प फ्रॉम योर टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स तो रहते ही है ना सर, मतलब टीम हाँ, वर्क ही वो रहता है हर ना। जगह रहेंगे, वो टीम वर्क ही रहता है। दैट इज, देर इज नथिंग लाइक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो, दे विल ऑलवेज हेल्प यू। क्योंकि देखो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, मान लो मैं हूँ, आई हैव द एक्सपोजर टू वर्क ऑन द आर्किटेक्चर, मैं आर्किटेक्ट लेवल पे हूँ, बट जब मैं एक नई कंपनी को ज्वाइन करूंगा, सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज न्यू टू मी। यस। तो मैं जाके ये नहीं बोल सकता पहले दिन से कि मैं आया ही आर्किटेक्ट हूँ, भाई ला दिखा, मैं सब कुछ कर दूंगा। आई कैन नॉट। मेरे को पहले केटी चाहिए होगा, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेल कनेक्टेड, हाउ द सिक्योरिटीज आर वर्किंग, व्हाट एप्लीकेशंस आर वेरी क्रिटिकल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट कंपनी। क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस है। जब मैं उन चीज़ों को समझूंगा, समझते समझते ही मुझे, क्योंकि आर्किटेक्ट लेवल पे तो 2 से 3 महीने वैसे ही लग जाएंगे, क्योंकि वो बंदा ही आर्किटेक्ट पे काम करेगा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसके बाद फिर मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। तो काम करते करते फ्लो में आते आते 6 मंथ लग जाते हैं कभी कभी, तो बहुत बड़ी कंपनी में ऐसा भी होता है। तो ऐसा ओके। नहीं है कि आप किसी कंपनी में, आपके पास चाहे 5 साल का भी एक्सपीरियंस हो गया ना एज्योर में या किसी भी डोमेन में,
तो आप किसी नई कंपनी में जाके पहले दिन से कभी भी अपने आप को वो नहीं दिखा सकते कि मैं सब कुछ कर लूंगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वी नीड द केटी, वी नीड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफ्रा, क्योंकि हर कंपनी का अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अलग तरीके से सिक्योरिटी सेटअप होगा। अभी आपके जो इश्यूज आप हैंडल करते हो डेस्कटॉप में, दैट इज नॉर्मल। मतलब 90% सिनेरियो सेम है कि यार रिमोट के लिए MSTSC चल रहा होगा, ME एडमिन चल रहा होगा, या फिर टीम व्यूअर चल रहा होगा, या फिर कोई टूल चल रहा होगा। कॉन्सेप्ट सबका सेम है। इश्यूज वही है, सिस्टम स्लो हो रहा होगा तो यही ट्रबल शूटिंग करूंगा। प्रिंटर का लगभग अलग हो जाता है कि अलग अलग प्रिंटर्स हैं, एप्लीकेशन अलग हो जाते हैं, बट 80% सिनेरियो तो सेम ही रहता है। बट ये जो डोमेन्स वाली जॉब होती है, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग हर कंपनी की अलग तरीके से सेटअप है, सर्वर्स हर कंपनी का अलग तरीके से है, क्लाउड अलग तरीके से। फंडामेंटल सेम है, पोर्टल यूज करने का तरीका सेम रहने वाला है, डिप्लॉयमेंट सेम रहने वाली है, बट एप्लीकेशन सर्विसेज अलग अलग है, कनेक्टिविटी सबकी अलग अलग है। सो केटी इज रिक्वायर्ड। तो पहले दिन से काम वैसे भी कोई नहीं करवाएगा। ओके Yes, yes, got it. ओके या सो ये जेसन याद रखना, जेसन इज जावास्क्रिप्ट नोशन। इन द बैकएंड एज्योर इज डूइंग एवरीथिंग यूजिंग द जेसन। सब कुछ कोड के थ्रू काम कर रहा है बैकएंड में, और ये जेसन के थ्रू काम करता है। इसमें इसी को हम ARM टेम्पलेट्स भी बोलते हैं एक्चुअली। You might have heard about ARM, Azure Resource Manager. So in Azure, if you want to deploy anything using the code, अगर आप कोड के थ्रू कुछ भी डिप्लॉय करना चाहते हो, अभी तो ग्राफिकली किया है ना हमने, बट इफ यू वांट टू डू इट यूजिंग द कोड, then we use the ARM template. ARM template is the default under Azure. Azure का default template होता है ARM. आपको कुछ भी create करना है using the code, you can always use the ARM, and ARM is in the Java. It is in JSON. जो हमें नहीं करना है, don't worry, कोडिंग वोडिंग हमारा काम नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा है, कर सकते हैं हम। आई नो हाउ टू यूज द ARM टेम्पलेट। और ऐसा भी नहीं है कि ARM टेम्पलेट यूज करने के लिए यू शुड नो द कोडिंग। आपको कोडिंग आने की जरूरत नहीं है। ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए क्या कोडिंग आने की जरूरत है? आप इसको 4-5 बार यूज कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या एडिटिंग करनी है। मुझे पता है मेरे को VM बनाना है विद द नेम ऑफ VM-02। मैं यहाँ आऊंगा, मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा, और क्या करना है, किस सब्सक्रिप्शन में बनाना है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ID चेंज कर दो, किस साइज में बनाना है यहाँ साइज दे दो। तो ये होता है इसमें, ऐसा नहीं है पूरा ये बैठ के लिखना होता है। नो, ये सब काम थोड़ी ना करना है, एडिटिंग करनी होती है। अगर अगर आपको फ्यूचर में करना पड़ा, मतलब आपको अगर मान लो करना है, आपको सीखना है, तो यू कैन ऑलवेज डू द एडिटिंग। आप इसको कॉपी पेस्ट करो, नोटपैड में ले जाओ, इसमें चेंजेस करो, देन डिप्लॉय। ARM के थ्रू भी डिप्लॉयमेंट्स होती है। सो आई नो हाउ टू डू दैट। मेरे को पता है ARM से कैसे यूज करते हैं। वो AJ305 का पार्ट भी है एक्चुअली। जब एक कोर्स होता है आर्किटेक्ट एक्सपर्ट, उसमें ARM टेम्पलेट्स आते हैं। यस विनीत, गलती से हाथ उठा दिया लग रहा है। AWS में वी हैव क्लाउड फॉर्मेशन। AWS में जैसे एज्योर में ARM टेम्पलेट्स है, ऐसे वहां पे होता है क्लाउड फॉर्मेशन AWS में। एज्योर में दो है, वी हैव what we call it ARM template। Azure में ARM भी है, and in Azure we have Bicep। Azure में दो आते हैं, ARM and Bicep, both are in the JSON। In AWS we have only one cloud formation। और हर जगह पे आपको अगर ये सारे कोड्स यूज करने हैं, then we have Terraform। Terraform के थ्रू आप किसी भी क्लाउड पे या किसी भी ऑन प्रेम पे रिसोर्स डिप्लॉय कर सकते हो यूजिंग द स्क्रिप्ट। और इनमें से किसी के लिए भी कोडिंग आने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू डू द एडिटिंग। और ये सब इंग्लिश में पढ़ा जा सकता है, सो यू कैन ऑलवेज परफॉर्म द एडिटिंग। स्क्रैच से कभी भी कोई भी कोड नहीं लिखा जाता। सो आते हैं वापस से। सो माई सेकेंड VM इज ऑल्सो डिप्लॉयड। इफ यू गो, यू कैन सी माई VM02 इज हियर। इफ यू क्लिक ऑन VM02, under the overview, if you scroll down, so under the availability plus scaling, you can see this is in fault domain number 1, and it is the part of AS01। If you directly search for availability sets now, डायरेक्ट उसी में चलते हैं ग्रुप में। इफ यू क्लिक ऑन अवेलेबिलिटी सेट 01, सो नाउ यू कैन सी वी हैव 2 VMs रनिंग, 2 VM चल रही है। अब देखो, अब समझ में आएगा आपको। पहली वाली VM रैक नंबर 1 में है, 0 मीन्स रैक नंबर 1। सेकंड VM किस में चल रही है? रैक नंबर 2 में। 1 का मतलब है रैक नंबर 2। नंबर्स क्या मिले हुए हैं? 0 1। जब माइक्रोसॉफ्ट रीस्टार्ट करेगा सर्वर्स को ड्यूरिंग द पैचिंग एंड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, जिस जिस सर्वर पे 0 नंबर होगा पहले उसको रीस्टार्ट करेगा। जब ये ऑनलाइन आ जाएगा देन इट विल रीस्टार्ट नंबर 1। दूसरा, अगर मान लो रैक फेल होता है,
रैक नंबर 0 फेल हो गया तब भी रैक नंबर 1 पे VM02 तो चल ही रहा है ना, तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्टेड नहीं होगा। अब जो सर्वर का एडमिन है, हमारा काम इतना ही है, जो सर्वर संभालता है ना, जो बंदा सर्वर एडमिन, जिसका सर्वर है ये दोनों बनाए तो हम बनाएंगे हम, बिकॉज इट इज ऑन द क्लाउड। इसके अंदर कौन सा एप्लीकेशन चलेगा, मान लो इस पे गूगल पे चलने वाला है इन दोनों पे, तो वो जो सर्वर एडमिन है वो गूगल पे यहाँ पे भी इंस्टॉल करेगा, यहाँ पे भी करेगा। और ये गूगल पे किसका है, ये एप्लीकेशन टीम का होगा। देयर विल बी एप्लीकेशन टीम, कंपनी में एप्लीकेशन टीम होगी जो गूगल पे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। गूगल पे किस पे चल रहा है, मान लो क्लाउड पे चल रहा है, तो क्लाउड पे चलवाने के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको इंफ्रा बना के देंगे, सर्वर्स बना के देंगे, नेटवर्क कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी हम लगा के देंगे, पैचिंग वैचिंग सब। एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन कौन करेगा, जो एप्लीकेशन टीम है जो गूगल पे को हैंडल कर रही है, इसके अंदर जो सर्वर टीम होगी, they will do the installation of Google Pay on both the servers, क्योंकि दो सर्वर क्लस्टर में है, तो इन दोनों पे इंस्टॉलेशन कौन करके देगा, हम नहीं करेंगे। वी आर द क्लाउड एडमिन। वो एप्लीकेशन का जो बंदा है जो गूगल पे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके पास सर्वर टीम होगी, उन्होंने ही ये सर्वर आपसे बनवाए होंगे टिकट रेस करके कि हमें ये सर्वर चाहिए। कॉस्ट भी उन्हीं वही लोग बेयर करते हैं, इनका जो हेड होगा एप्लीकेशन का, तभी तो टैक्स डालते हैं। जब बिल आएगा तो इसकी जो भी बिलिंग होगी वो इसको असाइन होगी कि तू बिल भरेगा, तेरे सर्वर है ना, तेरा गूगल पे चल रहा है। तो ये लोग इंस्टॉलेशन, इनकी सर्वर टीम इंस्टॉलेशन करेगी। अगर गूगल पे के अंदर कुछ दिक्कत हो गई, दे आर रिस्पॉन्सिबल। बट अगर वो सर्वर की वजह से गूगल पे नहीं चल पा रहा है, लेट्स से द सर्वर इज डाउन, सर्वर इज स्लो, सर्वर इज क्रैश, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए क्लाउड एडमिन, क्योंकि वो चल तो क्लाउड पे रहा है। ये होता है काम इस तरीके से। सो ये अंदर का काम हमारा काम नहीं है कि गूगल पे अंदर से जाके इंस्टॉल करके दो, ये वो वर्कलोड विल बी इंस्टॉल्ड बाय देम। बट कुछ वर्कलोड हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी अभी तो मैं कुछ वर्कलोड नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमने शुरू ही किया है, धीरे धीरे हम वर्कलोड भी चलाएंगे। सो अभी तो मेरे 2 VM है, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट रैक्स। नाउ लेट मी क्रिएट थर्ड VM। अब एक तीसरा VM बनाते हैं, अब आप और समझोगे। FD कितने हैं, 2 है, मतलब हमारी VM चाहे कितनी भी हो, वो 2 ही रैक में डिवाइड होगी, सिर्फ 2 रैक में। चाहे आप इस पे 20 VM बना दो, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 रैक्स। और लॉजिकल नंबर भी क्या होंगे, 2 ही होंगे, मतलब 0 1। अब एक थर्ड VM बनाता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट द क्लैरिटी। तो इसको भी सेम ग्रुप में बनाएंगे। गो टू द वर्चुअल मशीन, चूज द रिसोर्स ग्रुप VM03, देन अवेलेबिलिटी सेट। यहाँ पे नाम चूज कर लो, चूज द इमेज, विंडोज सर्वर 2019 2022 लाइनक्स, इट डजंट मैटर। ऐसा नहीं है कि सेम ही हो, चलता है। कॉन्फ़िगरेशन भी आपके हिसाब से एक सर्वर की ज्यादा भी हो सकती है, दूसरे की कम हो सकती है। सो उसके लिए देखो प्रोविजन है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बट कंपनी में जनरली आइडेंटिकल होते हैं। इफ वन सर्वर हैज द सेम कॉन्फ़िगरेशन इन क्लस्टर, अनदर सर्वर्स विल आल्सो हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन। सो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में आइडेंटिकल होता है, सो दैट दे कैन मैनेज द लोड प्रॉपरली। तो मैनेजेबिलिटी में इजी रहता है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट, बाकी वही नेक्स्ट नेक्स्ट करके रिव्यू प्लस क्रिएट। क्रिएट, अब थर्ड VM डिप्लॉय होने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ हाउ द थिंग हैपन्स। इट वाज इजी कॉन्सेप्ट, थ्योरी इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट प्रैक्टिकल देख के बहुत जल्दी समझ में आ जाता है ये टॉपिक। जब थ्योरी समझ रहे होगे आप, सो इट वाज समहाउ कॉम्प्लेक्स फॉर सम पीपल टू अंडरस्टैंड। AJ की थ्योरी इजी थी, AS इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बट अब आपको क्लियर हो गया होगा आफ्टर द प्रैक्टिकल हाउ डज इट वर्क। और ये सब टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सस्ती या आसान चीजें नहीं पूछी जाती इन द इंटरव्यू। यही सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हाई अवेलेबिलिटी, AS AJ। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, इट शुड बी ग्रेट विद यू। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जैसे वो डिस्क ऐड करना कोई नहीं पूछेगा, हाउ टू ऐड द एडिशनल डिस्क इन द VM, वो तो बहुत सिंपल सा है, VM में जाओ, डिस्क में जाओ, ऐड कर दो। वो आपसे पूछेंगे कैन वी ऐड द डेटा डिस्क इन द रनिंग VM, ये क्वेश्चन होगा। तो ये सब मैं दूंगा आपको, ये सब क्वेश्चंस वी विल गो थ्रू विद दिस क्वेश्चंस। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट वाले में डाले भी है, जो आपको अभी नोट्स अपलोड किए हैं ना, उसमें भी आपको देखना है, असाइनमेंट क्वेश्चंस करके एक फाइल होगी, उसके अंदर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एज पर द टॉपिक। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे उसमें क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आपको। वेल,
वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम इंटरव्यू क्वेश्चंस एट द एंड, तो वो सब भी तैयार करेंगे हम। यस पूजा? सर असाइनमेंट सबमिट करना है? नहीं, सबमिट नहीं करना, वो क्वेश्चंस है, वो असाइनमेंट नहीं है। वो फाइल का नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। असाइनमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, उसको तैयार रखना है आपको हर सीरीज में। अगर ओके उसमें सर। कोई भी आंसर्स नहीं आते हैं, मेरे से डिस्कस कर लेना आप क्लास टू क्लास। मतलब उसको डिले मत करना कि एंड में करूंगा या करूंगी। तो क्वेश्चंस को पढ़ लिए करो, आपको खुद से उनके आंसर्स पता होने चाहिए। नहीं पता है, यू कैन डिस्कस विद मी। उसमें कुछ यस। सिनेरियो बेस्ड आंसर्स, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस है। तो जो जो टॉपिक होते जाएगा मैं आपको क्वेश्चंस देते चले जाऊंगा। ओके सर। So this VM is also deployed. Now let's go to the VM series. We have 3 VMs. Now let's go to the availability sets. This is my AS. Click on this. I have now 3 servers. अब देखो, 2 रैक चूज किए थे ना मैंने, सर्वर 3 डिप्लॉय किए हैं। फर्स्ट VM इज इन रैक नंबर 1, सेकेंड VM इज इन रैक नंबर 2, और थर्ड VM फिर से रैक नंबर 1 में है। क्यों? क्योंकि रैक 2 ही रखे हैं ना आपने। कैसे डिप्लॉय हुआ है देखो, VM नंबर 1, ध्यान से देखो, VM नंबर 2, VM नंबर 3, ये रैक नंबर 0 है, ये रैक नंबर 1 है। 2 VMs यहाँ पे चल रही है, ये देखो, जिनके 0 0 नंबर है, इट मीन्स दे आर इन द सेम रैक। और 1 नंबर की VM कहाँ चल रही है? सेकेंड रैक में। अगर ये रैक डाउन हो गया या फिर ये डाउन हो गया तो एटलीस्ट एक रैक तो काम कर ही रहा होगा एक टाइम पे। सो दिस विल इंश्योर माई हाई अवेलेबिलिटी। UD0 पहले वाले सर्वर को मिला हुआ है, मतलब सबसे पहले 0 नंबर वाला सर्वर रीस्टार्ट होगा वंस इट इज ऑनलाइन। उसके बाद जहां जहां पे 1 है, जैसे ये 2 सर्वर्स पे 1 थे, इन दोनों को एक साथ रीस्टार्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट। तो एक टाइम पे तीनों सर्वर कभी भी रीस्टार्ट नहीं होंगे, नंबर्स के हिसाब से होंगे। 0 वाला पहले, वंस द 0 इज ऑनलाइन देन नंबर 1 वालों को रीस्टार्ट किया जाएगा। इसका काम खत्म तो नंबर 2 वालों को रीस्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे नंबर 2 कहीं पे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने लिमिट ही 2 2 तक डाल रखी है ना, इसलिए 2 2 का मतलब है 0 1 0 1, इसलिए 0 1 से ऊपर नंबर बढ़ ही नहीं रहा। अगर मैंने यहाँ फॉल्ट डोमेन 3 डाल दिए होते ना, इट मीन्स 3 सर्वर बनाए हैं, तो इनको कैसे नंबर मिलता? पहले वाले को 0, सेकंड वाले को 1 और थर्ड वाले को 2 मिलता तब। क्योंकि मैंने फॉल्ट डोमेन 3 डाले होते, 3 रैक्स में डिवाइड कर दो। और अगर मैंने यूडी भी 3 डाल दिए होते तो इसको 0, इसको 1, इसको 2 ऐसे मिलता। और मान लो अगर मेरे सर्वर 5 होते तो कैसे नंबर मिलता? तो जो मेरा 3 सर्वर तो इसी तरीके से चलते। फोर्थ सर्वर में क्या होता? अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एफडी अगर मैंने डाला होता यहाँ पे 3, यूडी भी डाला होता 3, बट मेरे VMs होते लेट से 5, तो कैसे नंबरिंग मिलती? पहले सर्वर को एफडी 0, मतलब फर्स्ट सर्वर VM नंबर 1। सेकंड वाले VM को क्या मिलता? यूडी नंबर, एफडी नंबर 1। थर्ड वाले को फिर से क्या मिलता? यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 2 मिलता है, इट मीन्स VM नंबर 3। फिर जो फोर्थ VM बनता उसको क्या मिलता? VM नंबर 4 को 0 मिलता। क्यों? क्योंकि एफडी 3 है, तो 0 से मिलता। फिर जो VM नंबर 5 होता उसको क्या मिलता? फिर से 1 मिलता। पांचों VM पूरे हो गए। अब अगर ये वाली जो VM है 0 0, ये एक ही रैक में है, जिस जिस पे 1 1 है वो एक ही रैक में है, और 2 तो अकेला ही है। तो इनकी जो यूडी नंबर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? अगर मैं यूडी 3 तक रखता तो पहले VM को 0, दूसरे वाले को 1, तीसरे वाले को 2, 3 पूरे हो गए, फिर से 0, फिर 1, ऐसे चलता है ये। सर मुझे यही पूछना था कि यहाँ पर ये जो यूडी मिला है 0 1 1 मिला है, ये ऐसे क्यों नहीं मिला 0 1 0? वो 0 1 0 ही मिलना था एक्चुअली, ये कुछ बग है। तो ये कुछ टाइम के बाद 0 आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पे बग आता है यूडी में, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर मोस्टली मतलब हर बार ऐसा होता है कि 30% सिनेरियो में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे 0 ही होना चाहिए। अभी थोड़े टाइम के बाद ठीक भी हो जाएगा। 30 मिनट्स का इसका अप टाइम होता है, 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये ठीक हो भी जाएगा। तो यहाँ 0 ही मिलेगा वैसे प्रैक्टिकली, दैट्स ओके। ये माइक्रोसॉफ्ट के कुछ बग्स है यूडीज को लेके, कभी कभी नंबरिंग्स में गलत दिखाता है ये, बट एक्चुअल में वो 0 ही रहेगा। सो इसको ध्यान मत देना, ये गलत नंबर है। ये कुछ टाइम के बाद अपडेट होके ठीक भी हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद रिफ्रेश वगैरह करोगे सो इट विल बी 0 अगेन। तो 30 मिनट तक वेट करोगे तो हो जाएगा, बाकी वो 0 ही रहेगा। ऐसा कोई वो गलती से आया हुआ है, ये इट्स ए बग। ये पहली बार नहीं हुआ है आज, ये पहले भी हो चुका है कई बार। इसके डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट के पास। ये बग है, ओके। तो 0 से ओके ही सर। रहेगा वो।
सो दिस AS कॉन्सेप्ट इज डन। AS के बाद वही है, प्रैक्टिकल हो जाए तो रिसोर्स ग्रुप को डिलीट किया जाए। अब मैं आपको AZ का प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, AS को बाद में डिलीट करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट AJ। AJ इज ऑल्सो सेम, बस VM डिप्लॉय करनी है। आई विल डिप्लॉय 3 वर्चुअल मशीन्स। मैं 3 VMs की कॉपी बनाने वाला हूँ। दे विल बी इन द UK साउथ, या उनके रीजन को ना ईस्ट US कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे हमें UK ही दिखते रहेंगे। तो इन तीनों को अब इग्नोर कर दो, ये तीनों VMs AS का पार्ट है। नाउ वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑफ AJ। सो आई विल क्रिएट 3 कॉपीज ऑफ द VM in the East US region, and they will be the part of availability zones in the same region. So let's do that. For that, I will go to the virtual machine, click on create, go to Azure virtual machine, वही रिसोर्स ग्रुप चूज करो अपना, नया बनाना है नया बनाओ। इफ यू वांट टू कीप इट इन द सेम यू कैन। हियर आई विल गिव द नेम, लेट्स से कुछ अलग नाम देते हैं आप, सर्वर -01 SERVER। लोकेशन वुड बी ईस्ट US। इस टाइम मेरे को क्या चूज करना है, नाउ आई वांट टू कीप दिस VM इन द अवेलेबिलिटी जोन, सो चूज द अवेलेबिलिटी जोन। अब यहाँ पे आपको जोन चूज करना है कि भाई कैसे। सो देयर इज वन न्यू ऑप्शन विच इज नॉट लॉन्च बाय द माइक्रोसॉफ्ट, इट इज अंडर प्रीव्यू, मतलब ये टेस्टिंग में चल रहा है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको फुली लॉन्च नहीं किया है, इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो इसलिए अभी ये सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। इट इज इन प्रीव्यू, हो सकता है 2-3 महीने के बाद इट विल बी फुली फंक्शनल, तब ये ऑप्शन आ जाए। तो इसमें आप चूज कर पाओगे, आपको दिखाएगा, मतलब आपको डेटा सेंटर का नाम भी दिखाएगा कि ये डेटा सेंटर इस लोकेशन में UK साउथ के है, ये डेटा सेंटर इस लोकेशन में है, ये वाला इस लोकेशन में। आपको कौन सी लोकेशन चूज करनी है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आने वाला है फ्यूचर में, नॉट नाउ। हो सकता है आपके कोर्स करते करते ये लाइव हो जाए, बट अभी तो फिलहाल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कीप्स अपडेटिंग द न्यू फीचर्स इन मंथ, इन क्वार्टर, हर क्लाउड में चलते रहता है, क्योंकि सब कंपटीशन में लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं ये लोग। तो अभी फिलहाल जो डिफॉल्ट है वही रहेगा, सेल्फ सेलेक्टेड जोन। मैंने आपको बताया 90% रीजन्स में 3 डेटा सेंटर है, एक ही लोकेशन में, एक ही कंट्री में 3-3 डेटा सेंटर फिजिकली चला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले। सो दैट इज वाई दिस 3 इज मेंशन्ड। तो इसको तो कुछ करना नहीं है, लीव इट डिफॉल्ट। यहाँ पे चूज करना होता है अंडर द अवेलेबिलिटी जोन, यू हैव टू चूज दैट हाउ मेनी कॉपीज यू वांट टू क्रिएट। जोन 1 का मतलब है डेटा सेंटर नंबर 1। इफ यू वांट टू क्रिएट 2 कॉपीज, तो आप 2 जोन चेक कर दोगे। 2 जोन चेक करोगे तो ये देखो दिखा रहा है 2 VMs बनेगी, 2 VMs बनेगी विद सर्वर 01-1, सर्वर 01-2। इनके नाम चेंज करने हैं, आप कर सकते हो। इफ यू वांट टू क्रिएट 3 कॉपीज, तीनों जोन को सेलेक्ट कर लो, 1 2 3, मतलब 3 अलग अलग डेटा सेंटर में 3 कॉपी बनाएगा ये। और ये देखो उनके नाम क्या होंगे, सर्वर 011, सर्वर 012, सर्वर 013। 3 वर्चुअल मशीन्स विल बी क्रिएटेड। इनके नाम ऐसे तो रखना नहीं है नाम, ये तो बेकार से नाम है। सो एडिट नेम्स, नाम चेंज कर दो। तो पहले सर्वर का नाम हम देंगे सर्वर 01, सेकेंड कॉपी विल बी सर्वर 02, थर्ड कॉपी विल बी सर्वर 03। बाकी डिफॉल्ट पे रखना है डिफॉल्ट रखो, दैट्स योर चॉइस। सो सेकेंड VM, फर्स्ट VM एंड थर्ड VM। और ये तीनों के तीनों अलग अलग डेटा सेंटर में बनेगी, डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर नंबर 2, डेटा सेंटर नंबर 3। एंड दीज 3 VMs विल बी द पार्ट ऑफ ईस्ट US रीजन। ये होंगे तीनों के तीनों ईस्ट US में, बट ये अलग अलग फिजिकल डेटा सेंटर्स है, एंड दे विल बी सेपरेटेड विद 190 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस। एक एक डेटा सेंटर 190 किलोमीटर्स के रेडियस में होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में थ्योरी में समझाया था। सो ओके करते हैं, तीनों के नाम आ गए। स्क्रॉल डाउन, बाकी वही सब चीजें हैं। इमेज चूज करो, साइट चूज करो। अवेलेबिलिटी जोन के कॉन्सेप्ट में कुछ साइट ऐसे होते हैं विच इज नॉट सपोर्टेड, तो ये आपको एरर भी दिखा देगा, क्योंकि हर जोन में हर साइज अवेलेबल नहीं है। तो उस हिसाब से हमें साइज भी चूज करने पड़ते हैं। जैसे इनमें से कोई भी साइज अवेलेबल नहीं है, बट इफ यू विल क्लिक ऑन सी ऑल साइजेस, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। सो आई विल गो विद लेट्स से 8 GB रैम 2 CPU, इसमें चले जाते हैं। ये अवेलेबल है, देखो देयर वाज नो एरर। तो अवेलेबिलिटी जोन के कॉन्सेप्ट में साइज जरूरी नहीं है कि वो साइज जो आप चाहते हो वो हर रीजन में मिल जाए, तो वी हैव टू कंसिडर इट अकॉर्डिंगली। साइज को चूज करना पड़ता है उसी के हिसाब से। AS में तो मिल जाएगा आपको। बाकी अपना यूजर नेम पासवर्ड, तो वही सब, बाकी सब कुछ सेम है, नो चेंजेस इन द प्रैक्टिकल। RDP I will enable, next, next,
ये देखो ये कह रहा है 3 पब्लिक आईपी बनेगी, 3 आईपी चाहिए ना, बिकॉज 3 कॉपीज ऑफ द सर्वर विल बी क्रिएटेड, तो कह रहा है 3 आईपी चाहिए होगी, तो वो तो चाहिए ही हमें, दैट इज फाइन। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना व्हेन यू विल डू दिस प्रैक्टिकल, जो नेटवर्किंग वाला सेक्शन आएगा ना, यहाँ पे लोड बैलेंसर, जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे लोड बैलेंसर सिलेक्टेड होगा, इसको नन कर देना, बिकॉज बाय डिफॉल्ट 3 वीएम बना रहे हो आप, तो लोड भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, सो दैट इज वाई इट विल टेक एज्योर लोड बैलेंसर एज डिफॉल्ट। बट हमें अभी लोड बैलेंसर नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, तो जस्ट कीप इट डन। जब मैं पढ़ाऊंगा देन वी विल यूज दिस फीचर। मैं कब पढ़ाऊंगा? सो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ नहीं, मैं नेक्स्ट वीकेंड से मैं नेटवर्किंग स्टार्ट करूंगा, सो आफ्टर 3 और 4 क्लासेस द एज्योर लोड बैलेंसर टॉपिक विल कम इनटू द पिक्चर। अभी 3-4 क्लास के बाद ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो तब मैं बताऊंगा, अभी तो फिलहाल कीप इट नन, तो नन कर देना इसको अंडर द नेटवर्किंग। जब आप एजेड का प्रैक्टिकल करोगे, गो टू द नेटवर्किंग, गो टू द लोड बैलेंसर, स्क्रॉल डाउन करके एंड कीप इट नन, कि लोड बैलेंसर नहीं चाहिए मुझे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, टैक्स देने हैं दे दो, नहीं देने स्किप। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। तो नाउ 3 कॉपीज विल बी क्रिएटेड, क्योंकि मैंने 3 कॉपीज ली है। तो अब देखते हैं डिप्लॉयमेंट्स। वहां पे मैंने एक एक करके बनाई थी ना एएस के केस में, यहाँ पे 3 एक ही बार में बनेगी, अभी देखना। तो ये देखो सर्वर भी 3-3 दिखा रहा है, देखो सर्वर 1 2 3, 3 सर्वर्स बन रहे हैं, और उनके साथ साथ उनकी जो बाकी की चीजें होती है जैसे एनआईसी कार्ड, पब्लिक आईपीस, तो सब चीजें एक साथ बन रही है। एंड इफ यू क्लिक ऑन ऑपरेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे भी आपको डिटेल में मिल जाएगा कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या स्टेटस है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, इट विल टेक 1 or 2 minutes अगेन, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो डिप्लॉयमेंट इज डन, बन गए। नाउ इफ यू विल गो टू द वर्चुअल मशीन, सो 3 तो मेरी पहले की थी, VM0 1 2 and 3, नाउ 3 मोर सर्वर्स हैव कम, 3 सर्वर और आ गए, देखो सर्वर 1 2 and 3। एंड इफ यू क्लिक ऑन द सर्वर्स, जो अभी नए बनाए हैं उन पे अगर आप क्लिक करोगे, अंडर द ओवरव्यू इफ यू स्क्रॉल डाउन, सो अंडर द अवेलेबिलिटी प्लस स्केलिंग यू कैन सी दिस सर्वर इज द पार्ट ऑफ अवेलेबिलिटी जोन। ये किसका पार्ट है? अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट है। अवेलेबिलिटी जोन नंबर क्या दिखा रहा है? 1। 1 का मतलब है ये डेटा सेंटर नंबर 1 में डिप्लॉयड है। एंड इफ यू गो टू सर्वर नंबर 2 नाउ, हियर इट इज द पार्ट ऑफ अवेलेबिलिटी जोन नंबर 2। 2 का मतलब है ये सेकंड डेटा सेंटर में है, किसके? ईस्ट यूएस के। ये देखो यहाँ भी दिखा रहा है जोन नंबर 2। इफ यू गो टू द सर्वर 03, तो यहाँ पे ये दिखाएगा इट इज इन ईस्ट यूएस जोन नंबर 3, मतलब थर्ड डेटा सेंटर का पार्ट है, और यहाँ पे भी दिखा रहा है देखो। तो तीनों सर्वर अलग अलग डेटा सेंटर में है। सर्वर नंबर 1 इज इन डेटा सेंटर नंबर 1, ये देखो। सर्वर 2 इज इन डेटा सेंटर नंबर 2 ऑफ ईस्ट यूएस। सर्वर 3 इज इन डेटा सेंटर नंबर 3 ऑफ ईस्ट यूएस। तो तीनों अलग अलग लोकेशंस में चल रहे हैं। दिस इज हाउ द एजे वर्क्स। अगर एक सर्वर डाउन होता है बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर लेवल आउटेज, अनदर 2 सर्वर्स आर अप एंड रनिंग। 2 सर्वर्स मेरे चल रहे हैं एजे में, सो इट विल नॉट इम्पैक्ट माई प्रोडक्शन इन द रियल सिनेरियो। और अगर आप यहाँ पे अलग से जाके अवेलेबिलिटी जोन सर्च करोगे, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अलग से नहीं आता। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द वीएम। अवेलेबिलिटी सेट तो अलग से मिल गया था आपको, बट एजे वीएम के साथ ही मिलेगा। यू कैन नॉट ओपन इट सेपरेटली, अलग से नहीं खुलता। तो यहाँ पे VM में आप जाओगे, एंड इन द ओवरव्यू पेज यू विल बी एबल टू सी द अवेलेबिलिटी जोन। स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करोगे तो यहाँ पे भी दिख जाएगा अवेलेबिलिटी जोन। इफ यू क्लिक ऑन एडिट, तो
ये आपको दिखा रहा है जोन नंबर 1 में ये वीएम चल रही है, और आप इसको मूव भी नहीं कर सकते। ये देखो ईस्ट यूएस में चल रहा है। और अगर मैं यही चीज सर्वर नंबर 2 के साथ भी करता हूँ, स्क्रॉल डाउन, एडिट, सो यू कांट मूव, तो मूव करना अलाउ नहीं है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। So now this practical is also done. AS हो गया हमारा, the AJ is also done. अब बचा हमारा VMSS. So VMSS is a टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक, मतलब इसकी पहले मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज अ लॉन्ग कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो ये मैं कल कवर करूंगा, अभी तो नहीं, क्योंकि सैटरडे को हमारी ज़्यादा लंबी क्लास होती भी नहीं है। सो कल जो आपकी 9 बजे क्लास है, दैट टाइम आई विल कवर द VMSS, और कल ये खत्म होके फिर दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे अगर हम पे टाइम बचेगा कल तो। ASR आपको बहुत बाद में पढ़ाऊंगा मैं ड्यूरिंग द बैकअप। महेंद्र, यस, दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे अगर हम पे टाइम बचेगा कल तो। ASR आपको बहुत बाद में पढ़ाऊंगा मैं ड्यूरिंग द बैकअप। महेंद्र, यस महेंद्र। सर जो बैलेंस कटेगा ना वीएम क्रिएशन का, जैसे आपने चेंज किया है, तो वो हमारे फ्री अकाउंट से ही कटेगा ना सर? हाँ, वो जो फ्री में जो उसमें अमाउंट है ना, उससे। यस सर। और हर प्रैक्टिकल के बाद, चाहे अकाउंट फ्री हो चाहे पेड हो, ऑलवेज डिलीट द रिसोर्स ग्रुप्स। कुछ भी रखना मत पोर्टल में, क्योंकि जो फ्री वाले भी अमाउंट है उसी में जी से सब सर। कुछ कट जाएगा, तो जब कट ही जाएगा तो क्या यूज कर पाओगे ये फिर। सर जो अभी कॉस्ट में दिखा रहा है, जैसे सर 82 रुपीज या समथिंग जो दिखा रहा है, वो हमारे फ्री अकाउंट से ही कटेगा ना सर? वो फ्री वाले से माइनस होते चले जाएगा। ओके 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 ओके। थैंक यू। ठीक है, चलो। सो नाउ